Hello students, welcome to Real Academy. In this series, we are seeing some of the very important questions of 10th State Board, which questions can come in the question number 4 और question number 5 segment. आमतौर पर बच्चों को इन क्वेश्चंस को लेके एक छोटा सा फियर होता है दैट दे आर द क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट बुक. तो अगर टेक्स्ट बुक के बाहर से है क्वेश्चन तो हमें करना क्या चाहिए. सो लेट अस सी सम ऑफ such questions. So starting with today's question, the question is find the value of m if the quadratic equation, there is an equation given, if the quadratic equation has real and equal roots. Before we start with the question, आपको तुरंत ये दो तीन चीजें यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए. Like first of all, the question is related to quadratic equation, ये आपको देखकर ही पता चला. हमें m फाइंड करने के लिए बोला गया है और m इस क्वेश्चन में दो बार रिपीट हो रहा है. एंड सेकेंडली क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में है. जैसे ही मुझे रियल एंड इक्वल रूट्स ये टर्म क्वेश्चन में दिया जाता है तो आई शुड डेफिनेटली कम अक्रॉस द डिस्क्रिमिनेंट इन माय माइंड. ओके, तो इन सब चीज़ों को लेकर मुझे वैल्यूज को सॉल्व करना है. तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. हम क्वेश्चन से शुरुआत ऐसे करेंगे. द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m minus 12 x square plus 2 times m minus 12 x plus 2 is equal to 0. As I said, the question is from the chapter quadratic equation. आपको quadratic equation के standard formula या standard form से a, b और c के values को पहले find कर लेना चाहिए. For that I will write here comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. I'll get the values of a, b and c. A is the coefficient of x square which is m minus 12. B is the coefficient of x which is 2 times m minus 12. And finally c is 2, the constant in the equation. So now I have the values of a, b and c. ये तीनों values आने के बाद I'll now look for the condition given. We are given that the equation has real and equal roots. The equation have real and equal roots. इसे use करते हैं. This equation, the roots of this equation आप लिख सकते हो. This equation have real and equal roots. If I am saying the equation have real and equal roots, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए that when the equation have clear and real and equal roots, मुझे discriminant का रूल पता होना चाहिए that for real and equal roots my value of discriminant, that is b square minus 4ac, this value should be equal to 0. For real and equal roots, the b square minus 4ac value is 0. Let us substitute the values from here. It is therefore 2 times m minus 12 the whole square minus 4 times a is again m minus 12, c is 2 is equal to 0. सोचने वाली बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. इस वैल्यू को लेकर आंसर हमें निकालने के लिए बोला गया है. ऐसा इजी क्वेश्चन मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है. ऐसे हो सकता है क्या? द थिंग इज दिस पार्ट ऑफ द आंसर. यहां पर आकर बच्चे डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते व्हेन दे स्टार्ट सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय एक्सपांशन एंड ऑल. वो और थोड़ा लेंदी होकर डिफिकल्ट हो जाता है. और यहां आपको आपका थोड़ा सा स्मार्ट वर्क
थोड़े से मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को अच्छे से यूज करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सपांडिंग टू फैक्टराइज एंड गेट द आंसर, यहां ज्यादा इजी और कंफर्टेबल वे होगा टू गेट द आंसर. सी हाउ. पहले तो मैं ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, तो आई गेट 2 square is 4 into bracket m minus 12 whole square, the square is applicable to both, minus 4 into 2 is 8 into bracket m minus 12 is equal to 0. Once again I'll repeat, instead of going for expansion and getting the values, I'll go for factorizing this and get the answer in an easy way. तो मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपके जो गिवन टर्म्स है उसमें ऐसा भी कुछ है जो कॉमन है, और कॉमन टर्म होने पर आप इजीली फैक्टराइज करके आंसर फाइंड कर सकते हो. सो व्हाट इज कॉमन? आई हैव m minus 12 द सेम ब्रैकेट प्रेजेंट. इन नंबर्स आई हैव 4 हियर, आई हैव 4 हियर आल्सो. 8 है ना, तो 4 2 is 8. सो आई कैन टेक 4 ब्रैकेट m minus 12 the common terms, and what is remaining in the bracket is, so bracket in the first term 4 is taken already as common. m minus 12 के दो brackets है, whole square है, दो brackets है, we have taken one bracket as common, so I am left with m minus 12 in the first term. Then we have a minus sign. 8 में से we have taken 4 common, तो 4 2s are 8, so I'll have a 2 here, and then m minus 12 is already common, so वो बाहर चला गया, is equal to 0. अगर आप यहां इसको एक्सपांड करते हो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड ऑल, तो एंड अप आप करोगे विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करते बैठना पड़ेगा, जिसको अगेन आप फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करने वाले. तो अल्टीमेटली इफ आई एम गोइंग टू गेट द आंसर बाय डूइंग फैक्टराइजेशन, देन व्हाई गो फॉर एक्सपांशन एंड देन फैक्टराइजेशन. मैंने कहा स्मार्ट वर्क, यहां थोड़ा आपको स्मार्टली काम करना होगा. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सपांशन, मैंने यहीं से उसको फैक्टराइज करना शुरू कर दिया. सो इन दिस मुझे जो मिले हैं टर्म्स वो मैं लिख लेता हूं. तो आई गेट 4 इंटू m minus 12 इंटू m minus 12 minus 2 is minus 14 is equal to 0. 4 is a constant, I'll divide it, I'll get m minus 12 into m minus 14 is equal to 0 divided by 4 is 0. Therefore, there are two possible answers. One is m minus 12 is equal to 0, or the other answer is m minus 14 is equal to 0. And thus, I have one value of m as 12 and the other value of m as 14. मुझे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू यहां मिल गया है, तो एक बार मुझे फाइनल आंसर लिखना चाहिए with a proper boxing and all. So m is either 12 or 14. I am making a good box here to indicate that this is my final answer, and that will give us 4 marks. ये मार्च 2025 के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. आई होप क्वेश्चन इज अंडरस्टूड. आपको इसको थोड़े से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा, एंड दिस इज दैट स्टेप जहां पे आके बच्चे कंफ्यूज होकर एक्सपांशन की तरफ जाते हैं, विच मेक्स इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो रादर देन गोइंग फॉर एक्सपांशन, अगर आप फैक्टराइजेशन से करते हो तो आपको आंसर डेफिनेटली अच्छा मिलेगा. यू कैन पॉज, यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर वंस, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इन योर बुक विदाउट सेइंग. थैंक यू.